हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ उर्शीन, आपकी टैरो रीडर एंड वेलकम टू माय चैनल द मैजिकल ऑरा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो you will not miss the latest readings. And please follow my Instagram and Facebook pages as well, the magical aura. The link is given in the description box below. I think that's all with the announcement, so let's proceed with your reading. Hi Scorpios, how are you? So today we are going to do general reading of Sun, Moon, Rising, Venus for the month May 2020. These are general predictions, so people, it might or might not resonate with all of you. And the deck which I am using is the Anna K Tarot deck. मैंने ये Amazon से ख़रीदा था and I really connect with this deck. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है and जो energies आती हैं they are really commendable. So it is really good. If you want, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, like if you are also liking tarot and you love doing tarot, you want to do tarot, so yes, for beginners tarot, this is a really good tarot. Okay, so let's start with your reading now. Scorpios, May 2020. So what's up with Scorpios right now? So at the back of the deck is the High Priestess. So now actually you are Scorpios को ना सब मालूम होता है. I don't know, but अंदर से ना they know everything. So I think this is your card which actually came up. So let's see what's going the present for Scorpios. Okay, lovers in love. Scorpios, with whom are you in love so much? So what's crossing over your lover? Yeah, Four of Wands. Maybe you are married, but that marriage is not working. What's the reason? Let's see. So what's on the mind for Three of Pentacles. You might be working for this relationship, but it's not happening. What's in the recent past is the King of Rods. So okay, so much of passion. You might be dealing with a Gemini with the Lovers card. Okay. Or some fire signs, Sagittarius, Aries, Leo. So what's the reason of the reading is the Ten of Pentacles. Yeah, definitely. The marriage or your family is a big reason for this. Recent future, which I can see is the Five of Rods. Okay, Scorpios. So how are you feeling right now? Is the Two of Pentacles. You are feeling very dicey. Why? What happened? Is regarding some kind of marriage stuff or some love stuff? Okay, so the people around you are the Death card. Okay, so maybe a Scorpion. Okay, so how are you feeling emotionally? The Hanged Man. So emotionally you are, actually you love this person, which I can feel. You love this person a lot, but you have to think in some different perspective as well. आप प्यार करते हो, but still because of these small issues, जो fights आप लोगों की daily हो रही हैं, आपको चीज़ों को बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ रहा है कि मतलब अगर ऐसा चलता रहा तो विल इट गोइंग टू लास्ट. ओके, एंड व्हाट्स द फाइनल आउटकम इज द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो द स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग इज रियली गुड. One more energy which I really feel is some kind of partnership. Actually ऐसा भी है कि the people who are engaged in some new venture, वो they are really, I really think कि आप बहुत ज़्यादा passionate हैं Scorpios, और आप you are ready to work. आप बहुत टाइम लगा रहे हैं इस नए काम के लिए, but आपको कहीं ना they are people जो आपको धोखा दे देते हैं. And in future, in recent future also, I really feel कि there will be some arguments, small fights. ये बहुत ऐसा नहीं है कि आपको धोखा मिलेगा ऐसे प्रॉपर, लेकिन yes, छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं, फाइट्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं. See the Nine of Swords, see the lady, she is not happy. रातों की नींद उड़ी हुई है. तो this happens with you because आपके ना सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं. इट्स नॉट जस्ट वन टास्क जो आप अभी डील कर रहे हैं. देयर मेनी थिंग्स which you are going through, your family stuff, your work stuff, there must be some other court stuff also.
तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो जो प्यार, द लव, और इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम फाइट्स इन योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, तो आपको वो मजबूर कर दिया है उन छोटी छोटी लड़ाइयों ने आपको डिफरेंट तरीके से सोचना। बिकॉज जो पीपल है ना, वो एक्चुअली दे रियली नीड सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दिस डेथ कार्ड इज़ लाइक कि आपको ना ट्रांसफॉर्म उनको, द पीपल विद whom यू आर डीलिंग विद, उन लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। दे नीड टू थिंक, बिकॉज अगर ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहीं, बिकॉज मुझे नहीं लगता रियली, इफ क्रॉस वॉचर्स, इफ यू आर वॉचिंग दिस, so you are not doing good with my Scorpios. You are really giving them tension. बहुत परेशान हैं वो, because they love you, and I don't know why they are doing this to you. So see, you are being so dicey. You want to be in this relationship, but still you want to move on also because of this small fights. But at the end, I really feel कि let's take some cards for you, some more cards. Okay, so what is it? Let's see what is the Nine of Swords about. I really want to clarify the Nine of Swords. Okay, Page of Swords and the Moon card. Okay, so this person might be a Cancerian with whom you are dealing with, and Page of Swords ये बता रहा है कि जो आपका प्यार है ना, वो सामने वाला देख नहीं पा रहा है। द वट एवर यू आर डूइंग इन दिस रिलेशनशिप, अगर ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम है वो, प्लस अगर ये आपका बिजनेस भी है, तो द पर्सन, द अदर पीपल, दे आर नॉट सीइंग कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं, एंड यू नो कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितना प्यार डाल रहे हो, आप कितनी मेहनत डाल रहे हो अपने काम में, बट द अदर पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी, और इस वजह से आपकी ना, आप बहुत परेशान हैं। तो जो मे का मंथ है वो आई थिंक कि छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, बट आपने जो अच्छा काम किया है इस मे में कि आपने सोचना शुरू कर दिया है एक अलग लेवल में, एक अलग एंगल से। दैट इज़ रियली गुड। सो लेट्स पिक आउट सम कार्ड्स फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ टू से फॉर यू। Scorpios, what the universe has to say for Scorpios. Okay, let's see. The first card is the Seven of Cups in reverse, Five of Pentacles, and Two of Wands. ओके, सो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि आप जितना ज़्यादा इस रिलेशनशिप, इस काम को दे रहे हो, उतना मत दीजिए। आप थोड़ा सा अपने इमोशनल, अपनी जो एक अंदर से स्कॉर्पियोज, दे आर ऑलवेज लाइक सब दे दो यार, जितना प्यार है ना सब दे दो, बट यू हैव टू रियली थिंक क्या सामने वाला डिज़र्व करता है वो प्यार आपका। बिकॉज अभी तो आप दे रहे हैं, बट आफ्टर दैट, बिकॉज व्हाट आई फील इज आपका जो एक जज्बा है हमेशा कंटिन्यू करने का, अच्छे से अच्छा काम करने का, जो आपको पसंद है, यू रियली लव वर्किंग, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। वो मे बी यू कैन गो टू फॉरेन लैंड ऑल्सो फॉर विद दिस वर्क, और आपको कोई और भी मिल सकता है अच्छा। दे आर लेस अपॉर्चुनिटीज़ राइट नाउ विच आई कैन सी, बट आगे नहीं होंगी। अभी प्रॉब्लम्स हैं, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको आगे भी यही प्रॉब्लम्स होंगी ना। नो, अभी दे आर सम काइंड ऑफ लेस अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज ऑफ द टाइमिंग ऑल्सो। सी एवरीवन इज़ एट होम राइट नाउ, और सब क्वारंटीन टाइम से गुजर रहे हैं, तो इस वजह से देयर मैनी पीपल जिन लोगों को मनी इश्यूज बहुत हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द लेस वर्क, एंड पीपल आर अनएम्प्लॉयड ऑल्सो। तो just have patience and do what you love and just have patience, and आप वो करिए जो आपको सही लगता है। बिकॉज आई कैन सी इन योर रिसेंट पास्ट ऑल्सो आप बहुत पैशनेट, जो भी आपने काम शुरू किया था बहुत पैशन से किया था, यू वर द किंग, लाइक आई डू इट, अपने काम में बहुत मेहनत करी है, बट अभी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स जा रही हैं।
आई रियली फील कि जो माहौल है ना अभी, उसकी वजह से थोड़ी सी रुकावटें हैं, बट आगे आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड स्कॉर्पियोज. आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा. थैंक यू.